2019 کے اینڈ تک پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے. الحمدللہ اس وقت ہم 4 مہینے پہلے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بہت خوشحالی ہے. ہم ادھر سے ہمارا یہ پروجیکٹ جیسے کھلا ہے اس سے ہم بہت خوشحالی ہے. ہمارے بچے بھی خوش ہیں, ہم پریوار سارا خوش ہے. کوئی 350 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اب یہاں میں پہنچا ہوں, اور آپ کو علم ہے کہ اس سے پہلے بھی تھر کو, اور خاص طور پر یہ جو ہم سنتے ہیں کہ یہاں جو دنیا کے بہت بڑے ذخائر جو کوئلے کے نکلیں گے اور جس سے بجلی نکلے گی, تو اگر کوئک آپ سے میں یہ معلوم کروں کہ وہ جو آپ کا ٹارگٹ تھا کہ آپ 330 اور 330 میگا واٹ بجلی دیں گے, اور شاید غالباً جو آپ کوئلہ نکال رہے ہیں وہ دیں گے, اب ہم یعنی جب کھڑے ہیں مئی تقریباً 2017 میں, تو کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ جی, جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپریل 2016 میں ہم نے فائنینشیل کلوز کیا, اس کے بعد ابھی ہمیں 13 مہینے ہو چکے ہیں اس کام کرتے ہوئے. الحمدللہ جو ہم نے اپنا ٹارگٹ دیا تھا کہ ہم 2019 کے اینڈ تک پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے, الحمدللہ اس وقت ہم 4 مہینے پہلے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ 4 مہینے پہلے کر لیں گے. ہم نے جو پیسے بتائے تھے اس سے بھی ہمارے پیسے بچ رہے ہیں, اس کی وجہ سے بجلی اور سستی ہو جائے گی. تو جو ہم نے ٹارگٹ دیا تھا الحمدللہ ہم اس ٹارگٹ پہ اس سے بہتر کام کر رہے ہیں. اور ایک سی پیک کے حوالے سے, یعنی مجھے غالباً جب 2010 میں آپ نے کام شروع کیا تو نہیں تھا, غالباً 2014 میں آپ نے جو پرائم منسٹر ریکویسٹ کی تو اس کا پارٹ بھی بنا, اور سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ پیسہ لینا حکومتوں سے یا کہیں سے بھی, اور غالباً $150 بلین لینا, یعنی وہ آپ کی اگر جیب میں آ جانا, تو اس پروسیس سے تو آپ گزر گئے, تو اور آپ کے پاس سیکنڈ فیز کے لیے بھی ہے. تو بلاک 2 میں جو آپ کام کر رہے ہیں اور جو آپ کا ماشاءاللہ پیسہ بھی آ گیا ہے, تو ٹارگٹ بھی اب کمپلیٹ انشاءاللہ اس سے بیفور ہو جائے گا. ہاں جی, یہ پروجیکٹ جو ہے فیز 1 جو ہے تقریباً $2 بلین کا پروجیکٹ ہے, اور فیز 2 جو ہے وہ ہمارا $1.5 بلین کا پروجیکٹ ہے. فیز 2 کے سارے پیسے ہمیں مل چکے ہیں. یہ پیسے ہمارے لیے ناممکن تھا 2013 تک, جب تک ہم کوشش کر رہے تھے. 2013 میں جب ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی اور گورنمنٹ آف سندھ سے ریکویسٹ کی, دونوں نے اپروو کیا کہ ہمیں سی پیک میں ڈال دیں گے. جب سی پیک میں ہمیں ڈالا تو اس کے بعد ہمیں پیسے مل گئے. ہم نے پاکستان میں سے بھی لون ریز کیا, چائنا سے بھی لون ریز کیا, اور اس وقت ہمارے پاس فیز 1 کے پورے پیسے اویلیبل ہیں. فیز 2 پہ بھی ہم تیاری رکھی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ 4-5 مہینوں میں ہم فیز 2 کے بھی $1.5 بلین کلیکٹ کر لیں گے. وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم یعنی اس علاقے سے جہاں سب سے زیادہ کوئلہ پیدا ہوتا ہے, اور آپ کو علم ہے, میں بہت ٹیکنیک میں نہیں جاؤں گا, کہ بدقسمتی سے ہماری 67% جو ہمارے یہاں بجلی پیدا ہوتی ہے وہ ہائیڈرل سے ہوتی ہے دنیا کے اگر مقابلے میں دیکھا جائے. تو ان کا ٹارگٹ بھی شیخ صاحب کا یہ تھا کہ کوئلے کو ہم لے کے آئیں, کوئلے سے ہم بجلی بنائیں جو سب سے سستی پڑتی ہے, اور جو ٹارگٹ ان کا 600 کا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ اچیو بھی کرنے جا رہے ہیں. تو میں تو یہی چاہوں گا کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اعداد و شمار غالباً سب سے کمزور ہتھیار ہوتا ہے ان اداروں کا یا حکومتوں کا جب وہ لوگوں کو قائل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. شیخ صاحب کا معاملہ دوسرا ہے, ذاتی حیثیت میں بھی میں ان کو جانتا ہوں کہ یہ زبانی کلامی بات نہیں کرتے. تو میں بھی اس ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر جو میں نے ان سے بریفنگ لی ہے, ایک کپ چائے پیوں گا, اور وہاں جاؤں گا جہاں میں 1.5 سال پہلے شیخ صاحب کے ساتھ گیا تھا. تو میں نے کہا تھا کوئی درخت کی چھاؤں نہیں مل رہی تھی, کوئی ٹریکٹر ضرور کچھ مٹی کھودتے ہوئے نظر آ رہے تھے, کچھ لوگوں سے گفتگو کی ہوئی. تو آئیے ذرا مئی کی گرمی میں, وہاں کراچی میں لوگ مجھے کہہ رہے تھے بھائی تھر جا رہا ہو گرمی میں, جب کراچی جو ہے 40 اور 42 ڈگری پر ہے. تو میں نے کہا بھائی, میں نے کہا یہ ایک تو پروفیشنل کی حیثیت سے بھی, اور بہرحال اگر ہم گرمی اور سردی اور موسم اور سختی کو پیش نظر رکھیں گے تو پھر کام کے لیے تو ان سب کو جھیلنا پڑتا ہے. اور شیخ صاحب تو میں دیکھتا ہوں بڑی تواتر سے اس کو جھیلتے رہتے ہیں. چلیے شیخ صاحب. شیخ صاحب اب ہم یہ جو ہے یہاں مین جو ہم آئے ہیں, یہ جگہ کیا ہے شیخ صاحب؟ یہ جی اب آپ مائننگ کے ایریا میں ہیں. ایک تھر بہت بڑا ہے, لوگ ہم سمجھتے ہیں مٹی کو تھر سمجھتے ہیں. پھر اسلام کوٹ ہے, ننگل آ رہا ہے. جو آپ کا جو کام کر رہا ہے وہ کہاں ہو رہا ہے؟ جی ہم دیکھیے جو 90 اسکوائر کلومیٹر پہ تھر میں کوئلہ پایا جاتا ہے, اس کو گورنمنٹ نے کافی بلاکس میں ڈیوائیڈ کر دیا, 13 میں کر دیا. بلاک 2 انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے, تو ہم اس وقت بلاک 2 کے اندر ڈرائیو کر رہے ہیں. یہ اس بلاک کے اندر 2 بلین ٹن آف کول ہے, جو ہمارے لیے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 5000 میگا واٹ 50 سال کے لیے پروڈیوس کر سکتا ہے. تو اس بلاک کے اندر ہم, جس کے اندر مائننگ کا کام اور پاور پلانٹ کا کام اب سارا شروع ہو گیا ہے, اور اس میں اب یہ کام چل رہا ہے. تو شیخ صاحب یہ مطلب یہ سڑک بھی میخانے پکی ہو جائے گی, یہ راستے بھی میخانے یعنی اس پر ہم ہموار طریقے سے چلیں گے. ابھی تو
कैमरा बता रहा होगा कि ये हिल रही है। तो ये जो सब काम जैसे कि आप कह रहे थे कि टाइमिंग से पहले कर रहे हैं, तो ये क्या यानी आमतौर पर तो समझा जाता है कि सिंध और ख़ासतौर पर थरी लोगों को ये लोग तो काम ही नहीं करते, घरों में बैठे रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं। तो ये जो इनको लोकलाइज को जो आपने ऐसे इंटरेस्ट पैदा किए जिसके सब आप नाउ ये इसका ना सिर्फ हिस्सा बन रहे हैं बल्कि इससे रफ्तारी से काम कर रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट का जो टारगेट है उससे भी पहले पूरा हो रहा है। जी इंशाल्लाह जी, हर चीज़ दुनिया में हर आदमी काम कर सकता है, जो मेहनत करने को तैयार हो, जिसको प्रॉपर इंसेंटिव दिए जाएं वो हर आदमी तैयार हो जाता है। इन लोगों को इंसेंटिव्स मिले हुए हैं, इन लोगों की ज़िंदगी बन रही है इधर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सब कुछ इधर दे रखा है। ये लोग अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट में तेज़ चल रहे हैं। तेज़ चलने की वजह ये भी है कि जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, माइनिंग पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रही थी, तो हमें बहुत सारे खदशात थे इसमें। जैसे जैसे खदशात और हमारे रिस्क ख़त्म होते जा रहे हैं, हम अपना शेड्यूल चेंज करते जा रहे हैं। इस वक्त हम 4 महीने अपने आप को अहेड बता रहे हैं, तकरीबन 15 से 16% कॉस्ट भी हमारी कम आ रही है। तो ये सब चीज़ें होती जा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2019 के फर्स्ट हाफ में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आप जिधर जाएंगे तो अब कोई बेआबा नहीं है, बल्कि ट्रैक्टर और ट्रॉलर और टैंकर आपको चलते फिरते नज़र आएंगे। और जैसे मैं आपसे कह भी रहा था कि बदकिस्मती से सिंध के हवाले से ये बहुत तासुर है कि यहाँ की हुकूमत के हवाले से, मैं कुछ सियासी सतह में नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ के जो अफसरान या इनके जो प्रोजेक्ट है वो प्रैक्टिकली काम नहीं करते, और अगर होता है तो सालों का काम मेरे ख्याल में दहाइयों पर चला जाता है। लेकिन जिस तेज़ी से ये जो, अगर मैं आपको दिखाऊं, बल्कि मैं कैमरे को ज़्यादा रखूँगा, कि हम ये देख रहे हैं कि जगह जगह आपको उस प्रोजेक्ट के असरात नज़र आ रहे हैं। और इसमें लामहला तौर पर जो काम एंग्रो ने सिंध गवर्नमेंट की मदद से शुरू किया था और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, गालिबन $2 बिलियन, और भी शेयर होल्डर रहे हैं। लेकिन जो इसका ऑपरेशनल काम है और जो इसका जो और बाकी चीज़ें देख रहे हैं वो उसमें एंग्रो बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। और शेख साहब, हम इस वक्त कहाँ जाएंगे? इस वक्त जी हम आपको माइनिंग साइट पे ले जाएंगे, आप जाके देखेंगे तो आपको यकीनन हैरानी होगी उधर के 1.5 साल के अंदर ये कितना ज़बरदस्त किस्म का काम इधर हो चुका है। इस वक्त हम 33% माइनिंग का कंप्लीट कर चुके हैं और हम 78 मीटर्स की डेप्थ पे जा चुके हैं। यानी हम ऑलमोस्ट एक हबीब बैंक का प्लाजा जो है हम उल्टा खड़ा कर चुके हैं, नीचे जा चुके हैं, और हमें एक दफ़ा और भी जाना है, डबल का आधा काम हम कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। तो आप माइनिंग देखेंगे जिसके अंदर अभी हमने 38 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ रिमूव कर लिया है, जो कि 112 करना है, इनमें से 38 हम कर चुके हैं। तो अब आप चल के माइनिंग का है आसान ज़बान में, यानी ये जो कोई स्टैंडर्ड है कि कोयला निकालने के लिए इन डेप्थ कितना जाना पड़ता है? नहीं, ये हर जगह डिफरेंट होता है। किसी माइन में ऊपर होता है, किसी में इससे भी नीचे होता है। हमारे पास कोयला जो है वो तकरीबन 140 मीटर पर है। तो 140 मीटर पे तो आपको जाना है, उसमें से 38 मीटर 38 मीटर 78 मीटर्स हम जा चुके हैं आउट ऑफ 140। तो कहीं दुनिया में बहुत ऊपर भी निकल आता है और दुनिया में कभी कभी 1-1 किलोमीटर नीचे भी आता है। सो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होता है जी। तो आइए चलें हमारे साथ। मैंने कहा ज़रा अभी सड़क नाहमवार है, लेकिन जगह जगह आपको जहाँ पर मैंने कहा कि जो इस प्रोजेक्ट पर काम होता हुआ आप देख रहे हैं, लोगों को भी देख रहे हैं इस सख्त गर्मी में। इस वक्त गालिबन 47-48 डिग्री, जी हाँ 47-48 डिग्री, और फिर जब खुला मैदान हो, 4 जानिब यानी सहरा हो, उसमें इस गर्मी में काम करना कितना बड़ा मैं तो जिहादी कहूँगा। तो शेख साहब, ये जो है यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से आप कर रहे हैं काम? जी, ये सामने आप माइनिंग व्यू पॉइंट है, सामने से आप माइन देख सकते हैं। यहाँ से माइनिंग आपको कंप्लीट नज़र आ रही है कि माइनिंग में क्या हो रहा है। ये एक जो है ऊपर से जो है इसकी जो डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर है, और हम नीचे जो है वो 78 मीटर्स में पहुँच गए। यहाँ पे हमने 38 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ निकाल चुके हैं, हमें 112 निकालनी है। तो ये पाकिस्तान की, इस वक्त भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी माइन है, जो कि ये सारा काम जो आप देख रहे हैं ये 13 महीने में हुआ है। जो दुनिया की बड़ी माइंस जो हैं वो इतना काम करती हैं। आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास इधर 125 ट्रक चाइनीज़ काम कर रहे हैं और हमारे पास 18 एक्सकेवेटर्स काम कर रहे हैं इधर, और 24 घंटे ये काम चल रहा है। और 24 घंटे काम चल रहा है? जी, हमारे पास 24 घंटे होता है। ना ईद होती है हमारे पास, ना बारात होती है हमारे पास, ना चाइनीज़ न्यू ईयर हम मनाते हैं इधर हमारा चीनियों के साथ यही एग्रीमेंट था कि हम भी 24 घंटे काम करेंगे, वो भी 24 घंटे काम शिफ्टों में, यानी जी 3 शिफ्टों में काम करते हैं हम लोग, 3 शिफ्टों में काम करते हैं। हमारे हर एक ट्रक के पीछे 3 ड्राइवर हैं।
तो हर एक काम करता है और ट्रक कभी रुकता नहीं है। ट्रक चाइनीज के लिए क्या ये वेदर क्या वो है या कुछ वहाँ भी होता है कुछ महीनों इतनी गर्मी? जी, वहाँ पे जितनी यहाँ पे गर्मी है उतनी वहाँ पर उतनी ही सर्दी होती है। तो जितनी हमारे, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि 48 डिग्रीज है यहाँ पे टेम्परेचर है, वहाँ पे जहाँ से ये लोग आए हुए हैं वहाँ पे 30 डिग्री माइनस होता है टेम्परेचर। लेकिन ये बहुत ही तेज़ और बहुत ही हिम्मत वाली कौम है जो इस जगह को पहुँचे हैं, तो कोई ना कोई वजह है उसकी। चीनियों की तरह मेरा ज़रा इम्तहान मत लीजिएगा, ज़रा जल्दी जल्दी बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। हाँ जी, तो यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं और हम 24 घंटे काम करते हैं जी। और लेकिन यहाँ पे आप जितने भी ड्राइवर देख रहे हैं, काम करने वाले देख रहे हैं, वो सब लोकल थरी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे के सारे चीनी सुपरवाइजर हैं यहाँ पे, लेकिन बाकी सारा का सारा समझूंगा कि जो मैं देख रहा हूँ यहाँ से ट्रक, तो अब ये जो है ये टारगेट है, यहाँ से हम समझे कोयला निकलेगा। ये जो सामने ये अभी हम 78 मीटर नीचे गए, हमें 140 तक जाना है। तो जितना ये नीचे गया हुआ उससे एक और नीचे भी जाना है। जिस सतह पे आप खड़े हुए हैं उससे ये आपको आधा काम नजर आ रहा है, आधा काम अभी हमें और भी करना है इसमें। वन स्टेप, जी, टू स्टेप, फिर 3 स्टेप। इसको बेंच कहते हैं, टेक्निकली बेंच कहते हैं जिस तरह आप कह रहे हैं। तो ये 13 बेंचेस बन चुकी हैं और इस तरह हम नीचे जा रहे हैं और जाकर हमने 26-27 बेंच करके हम बिल्कुल कोयला तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। कहाँ रहते हो तुम इधर? यहाँ इधर हम रहते हैं माइनिंग में। पहले क्या करते थे? हम पहले खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करते थे, तुम्हारे बाप दादा भी इधर करते थे यही खेती बाड़ी? तो अभी तुमको ये पता चला कि इधर आना है, इधर कोयला निकलेगा, इधर बिजली लगेगी, तो तुम्हारे बाप ने तो वो छोड़ो ऐसी ही बातें करते रहते हैं जी, हम इधर क्यों जाएं? आनंद बहुत खुशहाली है। हम इधर से हमारे ये प्रोजेक्ट जैसे खुला है एंग्रो, सिंध एंग्रो, इससे हम बहुत खुशहाली है। हमारे बच्चे भी खुश हैं, हम परिवार सारा खुश है इससे। ये जो तुम्हें तमाम वर्दी वगैरह दी हुई है, ये तो तुम अपनी तरफ से थी। तो वो तो लोग तो खैर गर्मी के आदी हैं, तुम लोग तो गर्मी के आदी हो। तो अभी चीनी मीनी भी जो है वो सब लोग सारी वर्दी, ये सारे वर्दी पहनते हैं। अभी रहने वहने की जगह भी अच्छी है, ऐसी लगी है कमरे में। ये थरी जो है ना मिट्टी से इस्लाम कोट जाता था, गले मिल के जाता था, बाबा कब मिलेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। अभी तो कोई फिक्र नहीं है ना, कोई फिक्र नहीं है। आप कहाँ के? मैं मिट्टी का रहने। अभी मिट्टी के? आप जी, मैं इधर डांबरी का जी। ये सब करीब के लोग हैं ना, मैंने कहा पहले गाँव करते हैं। तो ये आप समझते हैं कि जो सिंध हुकूमत या चीनी काम कर रहा है उसको थरी को फायदा पहुंचेगा, आपके घर में मिलेगा, आपकी तनख्वाह मिलेगी, इससे फायदा होगा? बहुत फायदा हुआ हमसे, सैलरी मिल रही है हमसे। फायदा हुआ है, अभी भी होगा, हम ऐसे सोच रहे हैं। ऐसे तो नहीं यूनियन मत बनाना, यूनियन बना ली, हमारे मुतालबे पूरे करो, नहीं जायज मुतालबे पूरे होने चाहिए है ना। बिल्कुल, हमको मसला हो गया आजकल है ना, बच्चों की रोजी करनी है और बच्चों के लिए स्कूल भी खोले दे दिए सिंध एंग्रो ने। ये जो अभी कुछ चीज जो हम थर के बस मशहूरी है कि वहाँ बच्चे मर रहे हैं, ये हो रहा है। वो तो खैर सबब ये है कि माशाल्लाह तो काम वाम भी लोगों को कम करते थे, तो कहते थे 8-10 बच्चे होते तो फिर बेचारा जब होता था। तो अभी कुछ सेहत तालीम वगैरह का भी फर्क पड़ेगा? सही बिल्कुल पड़ रहा है, सेहत पड़ रहा है। बहुत स्कूल भी है हमारे गाँव में, ब्लॉक 2 में। हमारा गाँव बिटड़ा है, पावर प्लांट के नज़दीक है। सही खुशहाली है। बल्कि मुझे ये बताया जा रहा है कि शेख साहब ने कि TCF को ला रहे हैं, जो बड़ा एक ब्रांड नेम है एजुकेशन में, इंडस TV को ला रहे हैं, वो भी ब्रांड नेम है। तो वो भी ज़रा कोशिश करेंगे। फिर इन लोगों को मॉडल घर बना के दिए जा रहे हैं इनके गांव पर। मैंने देखा था वो जो पलंग पर बैठा होता है बकरी के साथ, कहता था मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा, मेरे पुरख यहाँ रह रहे हैं, मेरी खबरें इधर हैं। लेकिन अब उन्हें राज़ी किया गया है कि भाई आपकी खबरें भी यहाँ रहेंगी, आपके बुजुर्ग भी यहाँ रहेंगे, आपको घर भी अच्छा मिलेगा। तो आइए चलें वो भी देखेंगे। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में।
पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खू चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी 2019 के एंड तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 4 महीने पहले उस पर बैठे हुए हैं कि बहुत खुशहाली है। हम इधर से हमारी ये प्रोजेक्ट जैसे खुला है, इससे हम बहुत खुशहाली है। हमारे बच्चे भी खुश हैं, हम परिवार सारा खुश है। मैं शेख साहब से पूछ रहा था ना कि थरी लोगों से और यहाँ के मुकामी लोगों से काम लेना कितना मुश्किल होगा, तो उनका कहना जनाब इसमें हम ज़ीरो टॉलरेंस होगी। और हमें क्योंकि कंपटीशन में चाइनीज़ भी मौजूद हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि थरी या सिंधी सोता रहे, चीनी काम करता रहे। चीनियों के ज़माने में, चीनियों के लिए एक ज़माने कहा जाता था जी सोई रहती है कौम, लेकिन देखें माशाल्लाह आज जागी है और दुनिया की इक़्तिसादी पावर बन गई है। और यहाँ भी हम क्यों ना उम्मीद रखें कि जो थर में एक तजर्बा किया जा रहा है इससे इंस्पिरेशन मुख्तलिफ जगह मिलेगी। अब शेख साहब हम कहाँ बढ़ रहे हैं आगे?
जी, हम आपको माइन की पिट में ले जा रहे हैं जो कि 78 मीटर नीचे है, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सकेगा चारों तरफ से कि कितना बड़ा काम इधर हो चुका है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ा अर्थ मूविंग वर्क है। इसको आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जितनी अर्थ मूविंग यहाँ पे हो रही है वो मंगला और तरबेला में मिलाकर हुई थी जितनी यहाँ पर हो रही है। तो मंगला और तरबेला दुनिया के सबसे बड़े अर्थ मूविंग डैम्स हैं जो कि सिर्फ एक माइन में इतने हमें अर्थ मूविंग करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत फास्ट और डिसिप्लिन के साथ काम चल रहा है। तो हम आपको बिल्कुल लोएस्ट पिट पे ले जाएंगे ताकि आपको चारों तरफ से वहाँ पर आपका कैमरा भी देख सके कि हम कहाँ पर हैं। शेख साहब बता रहे थे कि यहाँ 24 घंटे काम होता है, यानी 3 शिफ्टों में, और इसमें ये नहीं होता, हमारे यहाँ तो लोग इंतज़ार में रहते हैं कि छुट्टियाँ आ जाएं, त्यौहार आ जाएं, और मेरे ख्याल में कोई छोड़ते नहीं, बल्कि हमारे यहाँ लोग कराची में ये कहते हैं कि जी जुमेरात को तसल्लुत करके लोग चले जाते हैं, जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन छुट्टी, फिर पीर के दिन आते हैं, और त्यौहारों में तो हफ्ता होता है। लेकिन ये जो 4 महीने आगे चल रहे हैं उसका सबब यह है कि शेख साहब ने कहा कि चाहे चीनी त्यौहार हों या कौमी दिन हो या पाकिस्तानी, इस जगह पर इन्होंने ये अप्रूवल लिया है कि जनाब काम जारी रहेगा। और ज़रा देखिए, ज़रा कैमरा ये दिखाए कि देखिए कैसी, जिस जगह को काटा गया होगा और तराशा गया होगा और खोदा गया होगा इस सख्त गर्मी में, और ये मैं शेख साहब से मालूम कर रहा था कि ये मिट्टी जो है जो इतनी टनों के हिसाब से निकलेगी, कहाँ जाएगी, तो इनका कहना था कि जनाब ये मिट्टी हम उधर ले जा रहे हैं और फिर अभी देख रहे हैं कैसे सा पानी डालकर इसको हमवार की जा रही है। शेख साहब जहाँ अब पहुँच रहे हैं, और हम पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल 1-2 मिनट में यहाँ, लेकिन इन डेप्थ यानी जहाँ के रियल कोयला निकलेगा उसमें कितना वक्त लगेगा? जी, अभी तकरीबन 1.5 साल लग जाएगा जी। 13 महीने हो चुके हैं, 1.5 साल में हम जो है उस जगह को पहुंच जाएंगे जहां से हमें कोयला निकालना है। तकरीबन 1 साल से कम में हम कोयले तक पहुंच जाएंगे, लेकिन पहले कोयले की वो सतह वो आएंगी जो कि ज़्यादा क्वालिटी जिनकी बेहतर नहीं है। हम क्वालिटी तक जब तक पहुँचेंगे तकरीबन हमें 1.5 साल लग जाएगा, अगले साल की एंड तक हम पहुँचेंगे जी। शेख साहब के साथ कैप के साथ ये भी पढ़ना पड़ रहा है, और वो जो हम टॉप पर थे, यहाँ से देखें कोई वो जो आपको नज़र आ रहा है, उस टॉप से अब हम यहाँ ये एक आए हैं बिल्कुल डाउन, जहाँ पर अब एक्चुअली काम हो रहा है। शेख साहब ये इसको क्या कहते हैं? ये मेरे लिए बड़ा वो है, ये जी एस्केवेटर है जी। ये दुनिया के जो पाकिस्तान के सबसे बड़े एस्केवेटर हैं। ये 7 क्यूबिक मीटर का एस्केवेटर है जो हमारे पास 18 ये अवेलेबल हैं इधर, जिस पे काम हो रहा है। 24 घंटे ये काम करते हैं। ये जो है 3 स्कूप से लेकर 4 स्कूप में एक ट्रक को पूरे को भर देते हैं, और चूंकि ये बहुत महंगा इक्विपमेंट है इसलिए ये ट्रक कभी भी, ये जो एस्केवेटर जो है ये कभी रुक नहीं सकता। ये एस्केवेटर सारा वक्त चलता रहता है, तो जैसे ही एक ट्रक निकलता है तो दूसरा ट्रक इमीडिएटली उसकी जगह पे अवेलेबल हो जाता है, और 125 ट्रक काम कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह के कितने कर रहे हैं? ये जी जो एस्केवेटर जो है वो 18 काम कर रहे हैं जी, हमारे पास 18 हैं। इसकी काफ़ी मालियत होगी मैं ख्याल है जी, ये तकरीबन जी 10 करोड़ रुपए का एक है जी। 10 करोड़ का एक है, तो बड़ा इसको मेंटेन करना, इसके लिए इंजीनियरिंग ट्रेनिंग बड़ी जी। इसके लिए जापानी इधर हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये जापान का है ये, तो इसी वजह से जापानीज़ दोस्त हमारे पास इधर आए हुए हैं जो कि सारे सिस्टम को चला रहे हैं इधर। मैं इतना सख्तजार नहीं हूँ कि मजीद यहाँ खड़ा कर सकूँ, और ये देखिए 24 घंटे ये काम जारी है। मुझे आज खुशी है कि मुझे यहाँ पर एयर मार्शल रियाज शेख साहब भी मिल गए। इनसे भी हमारा बड़ा पुराना है, और इस वक्त तो ये पहचानने में नहीं जा रहे, माशाल्लाह टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे साथ प्रोग्रामों में आते थे। इनकी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। नजमुद्दीन शेख साहब सेक्रेटरी खारजा हुए, अमेरिका में सफ़ीर हुए, और शेख फैमिली के, और सिंध में बड़ी ब्राइट फैमिली समझी जाती है। तो आपको कैसा लग रहा है, ये मिरेकल है? देखिए, मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान में यही चीज़ इतने साल पहले उसका एक्सकवेशन और उसके ऊपर काम शुरू हुआ, इस हद तक कि वहाँ पे ये अब जो यही कोल की सीम जो चल रही है वो ख़त्म होने वाली है, जबकि हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आदमी हमारे पास सब हैं, मगर अगर सही आदमी सही जगह पे लगाए जाएं तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारे पास सबसे बड़ा एसेट जो है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है पाकिस्तान का। अगर हम लोग उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसको सही तरह की लीडरशिप दें, तो मेरा ख्याल है ये सारे मिरेकल्स अंजाम दे सकते हैं। यहाँ आकर इस सख्त गर्मी में, तो आपने इसकी कोई ट्रेनिंग ली है? जी सर, मैंने सर दुनिया में मुख्तलिफ जो माइंस हैं वहाँ पे जाके शॉर्ट कोर्सेज भी किए हुए हैं, और वैसे सर बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और माइनिंग के बारे में काफ़ी नॉलेज मुझे पिछले 5 साल में मैंने एक्वायर कर लिया सर। ज़्यादातर वक्त फील्ड में गुजरता है या एयर कंडीशन कमरों में? नहीं सर, ज़्यादातर वक्त फील्ड में गुजरता है सर। और यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं इस बार 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आज जाएगा सर, और तमाम लोग जो है यहाँ पे आपको नज़र आएंगे फील्ड में सर।
48 डिग्री, और बहरहाल अब गाड़ी में तो माशाल्लाह ये है कोई सर्दी का एहसास हो रहा है, बल्कि ये जो मैं पहने हुआ हूँ इसको भी उतार नहीं चाह रहा। शेख साहब, एक तो बहुत बड़ा मसला ये है, मैं ये देख रहा था कि जो टनों के हिसाब से जो मिट्टी आप लोग निकाल रहे थे, तो इसको फिर डंप करना उससे ज़्यादा बड़ा इशू होगा। हाँ जी, उसके बाहर जो है हम उसको एरिया को डंप कर रहे हैं, और डंप करने के बात ये होती है कि आप उसको बाहर लेके जाते हैं और ऐसी जगह पे जाके डंप करते हैं जहाँ पे नीचे कोयला कम से कम हो। इसी वजह से आप ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं ताकि कम से कम एरिया इस्तेमाल करें। इस वजह से हमने 2 से 3 किलोमीटर दूर माइंस के बाहर ये एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे हम सारी मिट्टी ला के डंप कर रहे हैं। सो पहले 112 मिलियन आएगी, फिर फेज़ 2 की 50 मिलियन आएगी, तो 170 मिलियन आ जाएगी। तो ये तकरीबन 60 मीटर, जैसे हम 140 मीटर नीचे पहुँच जाएंगे तो 60 मीटर हम ऊपर पहुँच जाएंगे। तो इस तरह करके 140 से आके 60 मीटर ऊपर, मतलब 200 मीटर हमारे यहाँ ट्रक चला करेगा जो लाके मिट्टी को डालेगा, जो अब तकरीबन 100 से ऊपर 120 तक अभी पहुँच गए, फिर 200 मीटर का होगा। तो आप बाहर निकल के देखेंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक पहाड़ बन गया है मिट्टी का, जो कि ऑलमोस्ट जितने आसपास के जो पहाड़ हैं उन्हीं साइज़ का बन गया है, जो कि ऑलमोस्ट मैन मेड माउंटेन है ये। जितनी हम गहराई में थे अब उतनी ही हम अब ऊंचाई पे खड़े हैं, और ये एक पहाड़ बन रहा है। तो मैं शेख साहब से कह रहा था कि गवादर भी मैंने देखा था कि उसको बड़ा अच्छा इन्होंने रिजॉर्ट बनाया है, बल्कि बहुत बड़ी कीमती ज़मीनें लोगों को बेचनी शुरू हो रही थी। तो ये कहते थे शेख साहब हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। नहीं जी, ये हमारा इलाका जो है ये हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसमें एक अच्छी जगह बना देंगे ताकि लोग आ सकें इसमें, लेकिन कोई भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस जगह को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं देखता हूँ जब जरा आगे जाता हूँ तो हरियाली ये पेड़ वेड़ हैं, तो इसी तरह का चीज़ें ये आ जाएंगी जी। इससे बेहतर कर लेंगे जी। यहाँ पे सारी प्लांटेशन हो रही है, अभी 10,000 प्लांट हम लगा चुके हैं अपने साइड में। तो जितना हम एक दरख्त काटते हैं तो उसकी जगह 10 दरख्त लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम बहुत बेतहाशा दरख्त लगाएंगे, घास लगाएंगे, ताकि ये सारा एरिया ग्रीन और अच्छा खूबसूरत हो जाए। तो चले जी, ये तो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप के बाद अब हम शेख साहब कह रहे हैं कि पावर प्लांट की तरफ चलते हैं। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
आवाज़ों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए (2019) के एंड तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 4 महीने पहले उस पर बैठे हुए हैं कि बहुत खुशहाली है। हम इधर से हमारे ये प्रोजेक्ट जैसे खुला है इससे हम बहुत खुशहाली है, हमारे बच्चे भी खुश हैं, हम परिवार सारा खुश है। शेख साहब से जो मैं कह रहा था कि जो सब आपने, तो इन्होंने कहा कि हाँ हमने 8 साल इस पर होमवर्क किया है, क्योंकि तो बस बयाबान था, लक़-ओ-दक़ सहरा थे, और हम लोग जब आते थे तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता था कि यहाँ कोई गाड़ी, कोई ट्रैक्टर, और मुझे शेख साहब बता रहे थे जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, बादी तो 1-1 करोड़ की और 12-12 करोड़ की गाड़ियाँ हैं। और अब ये जो हम जहाँ इन्होंने डंप किया है मिट्टी का पहाड़, वो जो एक नेचुरल इस ब्यूटी को रखना चाह रहे थे, फिर शेख साहब कह रहे थे कि इसमें से पानी निकल रहा है शेख साहब, और हम तो वो देखते थे कि एक औरत जो है घड़े सर पे रख के पानी लेने जा रही है, और लोग कहते थे देखा साहब ये हुकूमत लोगों को पानी नहीं दे सकती। वो बेचारी टिपिकल तस्वीरें सारी दुनिया में थर की वही पहचान थी। जी, यहाँ पे एक अंडरग्राउंड बहुत सारा पानी अवेलेबल है। यहाँ पे 3rd एक्वाफायर जो है उसमें बहुत पानी अवेलेबल है, वो हम पानी निकाल रहे हैं क्योंकि हमें कोयला निकालने से पहले पानी निकालना है। लेकिन उस पानी का यूजेज जो है
لیٹر آن تو ہم پاور پلانٹ میں سے استعمال کریں گے، لیکن وہ بہت سارا پانی ہمارا بچ جائے گا، تو ہم اسے ایگریکلچر پرپزز کے لیے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کو ایگریکلچر پرپزز کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ کچھ آئندہ تھریوں کو چائنا بھی بھیجنے کا بھی کچھ ہے کچھ آئندہ؟ جی ہمارے بہت سارے تھر کے جو ینگ انجینئرز جو ہیں وہ چائنا جا چکے ہیں، ابھی بھی چائنا میں ہیں وہ لوگ، تو وہاں پہ ٹریننگ جو ہے ساری ان کی ٹیکنیکل ٹریننگ وہیں پہ ہم کروا رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ گئے ہیں اور جاتے بھی رہیں گے، اور جب تک یہ مائن چلتی رہے گی، جب تک کہ ہم فلی کنٹرول نہیں کرتے، اور کنٹرول کے باوجود ٹیکنیکل ٹریننگ تو وہیں پہ ہوگی، تو وہاں پہ ہم کرتے رہیں گے، تو تھر کے لوگ جا رہے ہیں چائنا جی۔ اور ابھی جو ہم نے وہ جو ماڈل گھر دیکھا تھا تو اس کی بتا رہے تھے ہمارے شیخ صاحب کے کوئی تقریباً 250 گھر بنا رہے ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ تھر میں ہندو کمیونٹی کوئی 50% سے زیادہ ہے، تو کیا اس کا یہ جو آئیڈیا ہے کب تک مکمل ہو جائے گی؟ سر ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ کولہ نکلنے سے پہلے ہم نے جو پہلا ولیج ہے ہمارا سنڈی درس، جس میں تقریباً 1100 لوگ رہتے ہیں، ان کو یہاں موو کرنا ہے، اور یہاں پہ ہم 178 گھر بنا رہے ہیں۔ ان گھروں کے علاوہ یہاں پہ کامن فیسلٹیز بھی ہیں، جس کے اندر یہاں پہ ایک TCF اسکول 3 پرائمری اور 2 یونٹس والا، اس کے علاوہ لیڈیز کمیونٹی سینٹر، میل کمیونٹی سینٹر، مسجد، مندر، شمشان بھومی اور گریو یارڈ وغیرہ سارے یہاں پہ پرووائڈ کیے جائیں گے سر۔ تو یہ دیکھا آپ نے، یعنی جو گفتگو صبح سے ہو رہی ہے ہماری شیخ صاحب سے اور دیگر لوگوں سے، تو ایک نیا شہر آباد ہو رہا ہے، اور وہ بھی تھر، یعنی تھر پارکر جیسے لق و دق صحرا میں، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شاید یہاں شاید ہی کبھی ترقی اور علم اور یہ جو سڑکیں اور اس طرح لوگ آباد کریں گے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ٹھیک ہے ہمارے مراد علی شاہ ینگ انرجیٹک آدمی ہیں، لیکن اصل میں جو پولیٹیکل پرسیپشن یعنی سیاسی تاثر کچھ بھی ہو، آپ کہہ رہے تھے قائم علی شاہ صاحب نے اس میں بڑی ہیلپ کری ہے۔ جی ادھر جب میں اس پروجیکٹ پہ آیا تو قائم علی شاہ چیف منسٹر تھے ادھر، میں ان کے پاس گیا اور ان کو ایکسپلین کیا پروجیکٹ ہم کس طرح کرنا چاہتے ہیں، تو جب بھی مجھے کوئی بھی ضرورت پڑی گورنمنٹ آف سندھ سے یا کوئی بھی اس کے متعلق ضرورت پڑی، تو سید قائم علی شاہ سب سے پہلے انہوں نے میری سپورٹ کی، ہر چیز میں انہوں نے میری سپورٹ کی، اور جب بھی ہمیں کوئی چیز کی ضرورت پڑتی تھی، کسی اپروول کی ضرورت پڑتی تھی، ہمیں گورنمنٹ سے پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی، تو انہوں نے آگے بڑھ کر ہماری ہیلپ کی، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور یہ بات اب سید مراد علی شاہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ بغیر ان کے قائم علی شاہ صاحب کی سپورٹ کے یہ پروجیکٹ نہیں ہو سکتا تھا، تو انہوں نے بہت سپورٹ کی۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس وقت سید مراد علی شاہ اس زمانے میں فائنانس منسٹر تھے، انرجی منسٹر تھے، تو ان کا بہت زیادہ ہمارے ساتھ رہا ہے، اور اب وہ چیف منسٹر بن گئے تو ان کی اور بھی ہمارے ساتھ سپورٹ ہو گئی ہے، لیکن ہماری سپورٹ جو ہے وہ شاہ صاحب نے، سینئر شاہ صاحب نے بہت زیادہ کی تھی۔ اور اب ہم دیکھیں پلانٹ کی طرف آ گئے ہیں، اب یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جناب یہ پلانٹ، اور یہاں ہر ایک کوئی نہیں آ سکتا، اور اس کو دیکھ کر مجھے ایک اسٹیل مل کا ایک دور سے نقشہ نظر آ رہا ہے۔ شیخ صاحب یہ پلانٹ کب تعمیر ہوا ہے؟ جی یہ پلانٹ تعمیر ہونا شروع ہو گیا ہے، یہ پلانٹ جو ہے بالکل مائن کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو جیسے مائن کمپلیٹ ہوگی اسی طرح سے پاور پلانٹ بھی کمپلیٹ ہوگا جی۔ اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں۔ میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ۔ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD۔ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار
होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना
को पढ़ा घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और बैकड्रॉप बस की जमहूरियत है। लाजवाल है, उसको 5 दहाइयाँ गुजर गई हैं, जिसका मुंह बोलता सबूत गालिबन सबसे बड़ा वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि जब भी कड़ा और बुरा वक्त आया तो चाइना हमारा हाथ सबसे पहले उसने पकड़ा और सीपैक के ज़रिए अब तो $50 बिलियन जो आ रहे हैं। और खुशाइन ये बात है कि इब्तदा में तासुर था कि शायद पंजाब और इंडिविजुअली तक इसके समरात आएंगे, लेकिन अब सिंध में भी आएंगे। तो ये जो मैं शेख साहब के साथ पूरा जो आपका उस पूरे एरिया में ब्लॉक 2 में घूम रहा था, तो मॉडल मेरे साथ है और मिस्टर योंग जो प्रोजेक्ट इसके डायरेक्टर हैं। हेलो, हाउ यू? हाय, आई एम फाइन, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू। चाइनीज में तो कोई आगे चीनी में नहीं आपको नहीं जी। My English is poor, but I can explain a little. So now as I introduce, this is for this power plant main block. Main block is this is the boiler. This unit we have the 2 units. Each one unit is the 160 megawatt. This is the 2 boiler. This boiler manufactured from the is the Arston G. This is the main hole. Main hole is the steam turbine. Okay. Steam turbine inside, and this is the courtyard. What is this yellow? What? This is a reclaimer. Okay. For the the coal will from here to this the boiler. Okay. And then it will come from through this way. This track. Okay. मैं थोड़ा सा आपको उर्दू में भी बता देता हूँ। ये कोयला जो है ये हमारे ट्रक्स के ऊपर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये स्टोर होगा। ये 3 स्टॉक पाइल्स इसकी लगेंगी। ये जो 2 पीली मशीनें नज़र आ रही हैं कोयले को स्टैक करने के लिए और यहाँ से कोयला निकालने के लिए। कोयला यहाँ से आएगा इन कन्वेयर बेल्ट्स के साथ होते हुए ये इस बॉयलर में आएगा। यहाँ पे जो है कोयले से पानी के साथ जो है वो उसकी जो स्टीम बनेगी, स्टीम से जो है फिर वो मेन हॉल में स्टीम जाएगी, वहाँ पे उसकी टर्बाइंस और जनरेटर्स लगे हैं, वहाँ पे उसकी बिजली बनेगी। तो ये ब्लॉक 2 का ये हम मुस्तकबिल में जून में मंजरनामा देख सकेंगे। ये ग्रीनरी पॉसिबल होगी है? दिस ग्रीनरी इज पॉसिबल? ये दरख्त वरख्त आ जाएंगे? जी बिल्कुल, yes. Of course, possible. In the future, you can see this is for the green. In the future, the power plant have so many water. Then when we treatment, we have so many green. Possible. The Tharis are learning Chinese, so you Chinese are learning the Thari also. Language. We can learn. We should learn. But now is the Angora and the CMC together learn the Chinese. कुछ दिनों बाद नारा लगा करेगा और चीनी पाकिस्तान में चीनी थरी भाई भाई का भी नारा लगा करेगा। तो ये जनाब मैंने कहा ना जैसे आपको कि ये फ्यूचर है जिसमें हम देखेंगे इंशाल्लाह जून 2016 में। और अब तक जो भी गुफ्तगू हुई है वो सॉलिड ग्राउंड पे हुई है, वरना हम कराची में बैठकर डॉक्यूमेंट्रीज़ में और गुफ्तगू में और आदाद शुमार में देखते थे, लेकिन आपने 48 डिग्री इन गर्मी और आमतौर पर चाइनीज़ जो है वहाँ वेदर बड़ा कोल्ड होता है। मैंने विजिट किया है, आई हैव बीन चाइना 3 डिकेड बैक। हाँ, मैं देखा है वहाँ पर, और उतना ही ज़्यादा गर्म में ये लोग काम कर रहे हैं, तो इसकी दाद देनी ही चाहिए। सही तो तुझे नालू छा है? दोस्त मोहम्मद है। तो कब से रह रहे हैं इधर आप यहाँ पर? हम तो सदियों से रहे हैं, माँ बाप अजदाद से इधर ही रह रहे हैं जी। और इसी छोरा में रहते थे आप? हाँ, चौरे में रहते। पानी बड़ा मसला था, बिजली पानी गैस बड़ा मसला। जी हाँ, वो तो थर का बहुत मसला है, पानी और बिजली, पानी और बिजली का। लेकिन पहले जब बैंगलोर वाले आए तो आपको यकीन था कि यहाँ पर आपको नौकरी भी मिलेगी, जगह भी मिलेगी? पहले तो बड़ा मुश्किल था ना लोग। शुरू में तो हम भी नहीं पहचानते, पता नहीं और कैसे होगा। जब इनसे मिलना हुआ और उसको कुछ बातें इनकी जो वो सच्ची निकली तो इसमें एतमाद कर। अल्लाह ताला आपको आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिली के साथ इधर रहने को मिले। फिर ये भी कोयला निकल रहा है, बिजली निकल रही है, और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। यहाँ ये लोग इधर हमारे शेख साहब या ये ब्रिगेडियर साहब इधर यहाँ थोड़ी रहेंगे, ये इन्हें उधर ही जाएंगे। आप ही लोग रहेंगे ना। कोई कब्जा वब्जा करके इधर क्या करेगा? 5 घंटे का तो आने में रास्ते। नहीं, वो तो कब्जा क्या करेंगे यहाँ? उनके बेहतरीन घर है, वो छोड़ के इधर कब्जा करके क्या बैठेंगे? आप फैक्ट्री बना लें, मिल बना लें, बिजली दे दें, पानी दे दें, घर दे दें, लेकिन अगर तालीम ना दें
تو وہ نہ گاؤں بستے ہیں نہ شہر بستے ہیں. اور مجھے یعنی اتنی بہت جو اتنا میں نے گھنٹوں گزارے ہیں, پہلی بار مجھے ایک خاتون ملی ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا TCF ایک برانڈ نیم ہے, تو یہ کیا پروگرام ہے, کب تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ یہ اسکول انشاءاللہ 1 اگست کو 2 پیس کی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی, اور ہم لوگ انشاءاللہ 360 بچے جو ہیں وہ انیشلی ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور یہاں پہ پرائمری ایجوکیشن حاصل کریں گے. اور ایک آپ کی جو اچھی بات ہے, خیر آپ تو سندھ کی ہیں, گرمی ورمی کو سب برداشت کر لیے ہیں, ورنہ ادھر کوئی کراچی والی اگر کوئی آئی تو بیچاری کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ TCF اس علاقے کی مقامی ٹیچرز بھی رکھتا ہے, یہ تو ہے. تو یہ جو ایک میں نے کہا اس تمام کام کو ہم دیکھتے ہوئے جب یہاں فائنلی TCF پہ پہنچے ہیں, تو یہ جو سب سے بڑا کام ہے انشاءاللہ یہ اگست کو اسٹارٹ ہو جائے گا. انشاءاللہ 1 اگست کو بالکل اسٹارٹ ہو جائے گا 2017. انہی لوگوں کو پھر ان پلانٹ میں جابس بھی مل جایا کریں گے, بچیوں کو. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جس طرح شہروں میں تعلیم ملتی ہے جو کہ معیاری اور بنیادی ہوتی ہے, وہ ہمارے بچے بھی یہاں پہ تھر کے جو ہے ان کو اسی قسم کی اور اسی کوالٹی کی ایجوکیشن دیں. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اسکولز بہت ہیں بٹ کوالٹی جو ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ, اینڈ فار دا مین ریزن بینگ دیٹ ایمفیسس از ناٹ گیون آن دا کوالٹی آف ٹیچرز. اگر آپ اسکول کو ایک اچھا اسکول دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو انویسٹمنٹ اپنی ٹیچرز کے اوپر کرنی پڑے گی. آرٹ اسکول کھولنے کا ارادہ ہے ہمارا یہاں پہ انشاءاللہ آرٹ اسکول کھولنے کا ہے. ہر تعلقے میں ایک TCF اسکول ہم لوگ کھولیں گے, اور اس کے علاوہ there are other schools also جو کہ ہم چارٹر فار کمپیشن ایک اور آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. تھرڈ فاؤنڈیشن جو ہے وہ SECMC کی ایک آرگنائزیشن ہے, فاؤنڈیشن ہے جو اس کو ایجوکیشن سیکٹر کو یا CSR کو آپ دیکھیں کہ وہ لک آفٹر کرتی ہے. اسپیشلی ایجوکیشن میں جو ہے وہ ہم لوگ بہت تیزی سے آگے کام کر رہے ہیں. ہم گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم لوگ انفراسٹرکچر کے اوپر ورک کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا جو اپروچ ہے وہ ملٹائی گریڈ پہ نہیں, ٹیچنگ اور لرننگ پہ نہیں ہے, ہمارا سنگل گریڈ پہ ہے. تو TCF کا نام اور پھر آپ نے جو اینگرو کا جو کمٹمنٹ اور 3 فاؤنڈیشن, مجھے امید ہے کہ جب میں اگست میں یہ اگر مجھے دعوت دیں گی تو ضرور اگست میں آ کر اس اسکول میں بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھوں گا کہ تعلیم کے بغیر نہ گاؤں بستے ہیں نہ شہر بستے ہیں نہ پلانٹ بنتے ہیں. اور TCF کا ایک برانڈ نیم ہے, بڑا اچھا انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. تھینک یو میم. شام کے اسی پہر میں ہم مٹھی اور اس کے بعد اسلام کوٹ جا رہے تھے, جہاں سندھ اینگرو تھر پاور کول کا دعویٰ ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک نہ صرف کوئلہ پیدا کر دیں گے بلکہ 600 میگا واٹ بجلی بھی پیدا کر دیں گے. یہ کوئی 2 بلین, جی ہاں 2 بلین ڈالر کا پبلک پرائیویٹ سیکٹر کا پہلا اتنا کثیر سرمایہ کا پروجیکٹ ہے. یہ ایک ایسا گیم چینج ثابت ہوگا جس طرح CPEC کے بارے میں کہا جاتا ہے, اور CPEC سے بھی اس سے بڑی اس کو مدد مل رہی ہے. تو دیکھیے جو میں 1.5 سال پہلے کم و بیش 18 ماہ پہلے جو کچھ میں نے تھر دیکھا تھا جو مختلف آپ نے دیکھا, کوشش کروں گا کہ آئندہ جب اگست تک یہ مکمل ہونے کے قریب ہوگا تو ایک بار پھر یہاں آ کر دیکھا جائے کہ واقعی جو خواب یہ دکھا رہے تھے وہ حقیقت کا روپ دھار گئے.